Hello friends, would like to see Gala paper 4 section B and that is of standard. Now, we have seen in the previous video or previous lecture question number 25 and 26 of section B. We would like to start with 27. Sum of the zeros minus 1 by 4 and product of the zero 1 by 4. You have to find out quadratic polynomial. So p of x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. X square minus 1 by 4x plus 1 by 4. If you try to take LCM, what is your LCM? 4x square, where you can put down k, where k is not equal to 0. That is style of Gujarat law. Now, question number 28. Solve the following pair of linear equation by method of elimination. 2x plus 3y equal to 2, equation number 1. 5x plus 4y equal to 3 integer 5 upon 6. Now, एक और भी मेथड आ रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की. तो लेट अस सी. 2x plus 3y equal to 2. 6 3s are 18 and 5 23 by 6. इसको लिखेंगे 23 by 6. ध्यान से लिखो. 6 3s are 18 and 5 टोटल करना. 6 को अगर उस तरफ ले जाए तो 6 5s are 30x, 6 4s are 24y और यहाँ पे बना 23. अब आप इसको 1 और 2 लिख सकते हैं. Now, to get rid of this, you need to multiply with 8. 8 is a 16, 24, 16, 30x, 24y, 23. Minus, minus and minus is getting cancelled. Minus 14x equal to minus 7, x equal to minus 7 by 14. मतलब कि आंसर हाफ. कोई भी एक इक्वेशन में आप यहाँ पे रख दो 2 into हाफ plus 3y equal to 2. 2 कैंसिल, 1 उस तरफ गया, 3y equal to 2 minus 1. प्लीज कंसीडर दिस वन. ये तो कई लोग सीधा इसको 0 समझ के आगे चलते हैं. 2 minus 1 1. योर आंसर y equal to 1/3. x 1/2, y 1/3. Next one, 29. Look at this 29. Solve the following pair of linear equation by cross multiplication method. इसको पहले ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. 3x plus 4y plus 4 equal to 0 by which method? Cross multiplication method. Now, try to see. X y 1 7 3 4 4 minus 12 4. x के नीचे अगर हम लोग लेंगे तो 4 4 minus 12. If you take y, then minus 12 4 7 comma 3. And if you take 1 7 3 4 4. Primary diagonal 4 4 is 16, बीच में माइनस और ये भी माइनस -28. y के नीचे -36 -28 और यहाँ 7 4s are 28 minus 12. 48 and 16 64. ये भी आपका 64 बट माइनस, ये आपका 16. वेरी सिंपल. x equal to 64 by 16, that is 4, and y equal to minus 64 by 16, that is minus 4.
your answer x comma y 4 comma minus 2. That was 29. Number 30. Question number 30. 30 को अगर आप देखें तो इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q, दैट्स गुड, PR प्लस QR आपको दिया है 25 एंड PQ dimension 5, 55. अगर आपको QR प्लस QR मतलब कि PR इक्वल टू आप 25 माइनस QR ले सकते हो फॉर दैट, और QR को इटसेल्फ QR ही रखो एंड नाउ गेट द वैल्यू ऑफ QR, PR एंड देन दे आस्क अस टू फाइंड आउट sin t, cos t एंड tan t. ओके, मतलब ये सब फाइंड करना है आपका गैरेंटी से. पाइथागोरस से देखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR. PQ स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, और ये 25 माइनस QR का होल स्क्वायर. 625 माइनस 25 is a 50, QR plus QR that is equal to QR square plus 25. This is getting cancelled. इसको इस तरफ लाए तो प्लस 50 QR, इसको इस तरफ जाए तो 625 में से 25 गया तो 600, 0 0 कट, मतलब कि QR आपका आ गया 12, 5 12 एंड 13 आपका PR आ गया 25 माइनस 12 13, ट्रिपलेट आ गया. अब हम लोग देखेंगे sin t. sin t QR upon PR 12 upon 13, cos t adjacent upon hypotenuse 5 upon 13, and one more they ask 13 that is tan t opposite upon adjacent, 12 upon 5. Hence your question number 30 is also over and out. 31 देखते हैं, इवेल्युएट करना है. sin 30 tan 45 minus cosec 60. Below that sec 30 cos 60 and cot 45. Sin 30 is half, tan 45 is 1, and cosec 60 2 upon root 3. Sec 30 2 upon root 3 प्लस हाफ प्लस हाफ. कोई साइन की वजह से ऐसा नहीं समझे कि सब सेम टू सेम है, बट कर दो एलसीएम लेंगे 2 रूट 3, इसको चाहिए रूट 3, इसको चाहिए दोनों 2 रूट 3 और इसको चाहिए 2 4. नीचे देखो सेम एस, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए रूट 3 और इसको चाहिए 2. मतलब ये कैंसिल हो गया. अब 3 रूट 3 माइनस 4, नीचे 3 रूट 3 प्लस 4. हम कॉन्जुगेट लेंगे 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4. ऊपर आपका स्क्वायर हो गया और नीचे 3 रूट 3 का स्क्वायर करो तो 27 माइनस 16. यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं, इसका आंसर यहाँ लाते हैं 4. 3 रूट 3 का स्क्वायर करो तो 27 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 रूट 3 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे आएगा 11. फाइनल आंसर 43. टेक्स्ट बुक का ही है, ऐसा और आंसर भी आ सकता है. योर फाइनल आंसर दिस वन 43 minus 24 root 3 upon 11. That was question number 31. Now the very important one, 32. Prove that 1 upon sec minus 10 minus 1 upon cos that is equal to 1 upon cos
माइनस 1 सेक प्लस टेन। इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पूरा राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, बट हम लोग आपको इजी लगे इसीलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और LHS RHS मैच करेंगे। LHS 1 की आइडेंटिटी को sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रखते हैं और नीचे sec माइनस टेन। यू मस्ट बी हैविंग इक्वेशन कि 1 के बदले तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी हो सकता है, cos x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ पे इसको निकालना है 1/cos मतलब क्या हो गया sec। अब sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फैक्टर होता है sec प्लस टेन, sec माइनस टेन, नीचे sec माइनस टेन इज गोइंग टू बी कैंसल और यहाँ पे भी माइनस sec है, दिस इज गेटिंग कैंसल, sec प्लस टेन माइनस sec मतलब कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाता है। सेम मेथड डिक्टो हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे, तो 1/cos एक स्टेप लिख देते हैं, 1 की आइडेंटिटी लिखते हैं sec स्क्वायर माइनस टेन और नीचे sec प्लस टेन। यू कैन राइट 1/cos को sec स्क्वायर sec प्लस टेन sec minus 10. If you can see sec plus 10 is going to be cancelled. जैसे वहां माइनस कैंसिल हुआ यहाँ पे प्लस कैंसिल हुआ, तो sec थीटा माइनस sec थीटा, क्यों माइनस साइन माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, hence your LHS that is equal to RHS. LHS RHS both of them 10 theta. Question 33 में point P lies in the exterior of circle with center O and its distance from the center is 26 cm. Tangent from P touches the circle at T, टच करवाया, PT है 10, आपको फाइंड करना है रेडियस। Very ordinary question they are asking even in standard paper. OT perpendicular to T. Theorem 10.1. Measure T 9. OT square plus TP square equal to OP square. OT square we don't know. 26 square minus 10 square. 626 minus 100 मतलब के 500 है। तो आपका आंसर 40 रेडियस पूछा तो 24, और अगर आप देखेंगे कि डायमीटर भी कभी कभार पूछ सकते हैं, तो 33 के बाद हम लोग लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन 37 इतने में हो जाए, इसीलिए 37 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। When they ask about method of factorization, we don't have to use anything minor. No formula, no method of perfect square, just open b square x minus acx minus b square। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x दिखता है और b, तो बचा क्या ax और यहाँ से यहाँ से कॉमन दिखता है c, तो ax plus b। Your one factor is ax plus b, another factor is bx minus c। ax plus b equal to 0 मतलब कि x equal to minus b by a and bx minus c equal to 0 मतलब x equal to आपका c by b। Hence इतने में दूसरा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता था। Let's start 34। 33 के बाद हमने 37 किया था, 34 करते हैं।
स्टैटिस्टिक का है वो। नाउ आपको फाइंड करना है मीन, मतलब कि क्लास फ्रीक्वेंसी 0.00 to 0.004, सॉरी 04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। फ्रीक्वेंसी है आपकी 499242 मिड वैल्यू फाइंड करेंगे 0.02, 0.06, 0.1, 0.14 सॉरी 0.18, 0.1। अब अगर किसी एक को लेना है, assume ui equal to xi minus a upon h, 0, -1, -2, 1, 2 and 3, fi ui -8, -9, 0, 2, 8 and 6, 8 और 8 गया, -3 हुआ। तो अब x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू क्या लिखे h। a है आपका 0.1, ये है आपका -3 अपॉन 30, और यहां पे देखेंगे तो 0.04 का डिफरेंस है, तो 0.1 minus 1 upon 10 into 4 upon 100 बराबर है 4 upon 1000, मतलब कि 0.004। 0.1 में से अगर आप 0.004 माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.99। Hence, this is your very important question, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका गड़बड़ होना तय है। हमारा यहाँ पे एक राइडर आ जाने वाला है, तो जैसे कि सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में 0.1 0.099 चेक कर लो, इसमें आप ऑलमोस्ट प्लस करो तो आंसर में आपका यहां पे तय है। ओके फाइन, जस्ट वेट। ओके यहां पे देखो एक मिस्टेक हुई है, 2 and 6 8 तो 1 आता है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो -1 और यहां पे 0.04 नीचे 30 है, मतलब कि -9 और +6 हो गया, 4 को ऐसा रखते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 1 तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4/3 है,
3000। 4 को पहले 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.33। हाँ देखना, और नीचे अगर ऐसा भी करें तो 0.01 आएगा अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर है 0.099 ppm। यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, आपका ये आंसर 0.099 अप्रोक्सीमेट। यहाँ से 3 का कोई मतलब नहीं है। 34 के बाद 35 लिखने वाले हैं। 35 में एक राइडर है जोरदार, ए सी क्यू एक्चुअली तो इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा। पैरेलल आर, अच्छा ये आपका क्यू। समझ लो कि ये दो पैरेलल है और ये दो पैरेलल है, बी ई सी और डी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। दे मेंशन कि क्यू पैरेलल टू बी ए, पी आर पैरेलल टू सी ए, पी डी दे मेंशन 12। आपको फाइंड करना है बी डी इंटू सी डी। ध्यान से देखते जाए, PQ पैरेलल टू AB है, that means PQ is parallel to RB भी है, PQ is parallel to RB भी है। तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, इसमें PQ पैरेलल हो गया, BRB, BRB PQ पैरेलल टू RB है। हम लोग रेशियो लेंगे DQ अपॉन QR इक्वल टू यहाँ पे DP अपॉन Q, बराबर है रिजल्ट 1। देखते जाना, थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, बट अब दूसरा ट्रायंगल जो है ये देखो, हमने ये लिया। अब ये किसको पैरेलल है? PR पैरेलल टू CA। ध्यान से देखो, PR पैरेलल टू CA, दैट मींस PR पैरेलल टू QC, बराबर है। मतलब कि हमारे पास PR पैरेलल टू QC वाला एक ट्रायंगल और है, और वो कौन सा है? DRP। DRP में देखते हैं, DRP में देखते हैं कि ये QC पैरेलल टू PR हो गया, तो DQ अपॉन QR, DQ अपॉन QR इक्वल टू DC अपॉन PC। रिजल्ट 2। अब देखो DQ अपॉन QR, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, आपका DQ अपॉन QR कॉमन निकला, तो यहां से लेंगे DP अपॉन PD इक्वल टू DC अपॉन C। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक DP तो हमको चाहिए, नीचे वाले जो PP है इसको हम लोग कैसे करेंगे? PB
बराबर। तो के डीपी में से पीडी माइनस करो, पीडी माइनस डीसी जो है कुछ बीडी है, सीबी है। सीपी को कैसे लिखे, सीपी को तो के सीपी को कैसे लिखे कि सीबी माइनस, ऐसा लिख कर सकते हैं डीपी माइनस डीसी, डीपी माइनस डीसी। चलो अब ट्राई करें अलग अलग मेथड से। पीडी स्क्वायर माइनस डीपीडीसी इक्वल टू बीडीसीडी माइनस पीडीसीडी। ये देखो पीडीसीडी दोनों साइड कैंसिल, मींस पीडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। आपको पूछा है बीडी इंटू सीडी, पीडी स्क्वायर कितना दिया है 12 स्क्वायर, हेंस वन ऑफ द बेस्ट ट्रायंगल you have seen, answer is 144। बराबर ध्यान से देखिए ना, दो ट्रायंगल पहले एक ये और फिर दूसरा ये, दोनों पैरेलल का इस्तेमाल करके रेशियो ले, एक जगह पे आपको गड़बड़ होगी वो माइनस करते हो। 36 नंबर, 37 ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। Let number of article be X per day. Observed on a particular day the cost of production of each article, cost of production of each article. तो क्या है 3 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of production, total cost ₹90, तो total cost क्या है, number of article into cost of production, that is equal to total cost। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि x into 2x plus 3 equal to 90। अब फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल एज वेल एज कॉस्ट ऑफ ईच। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 180 है तो 15 12 फैक्टर हुआ। 2x कॉमन x माइनस 6, 15 कॉमन x माइनस 6। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल x6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ ईच वन 2 into 6 plus 3 15 रुपीस। हर एक का कॉस्ट 15 रुपीस, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 15 6 का 90। आपका ऐसा कैरी भी हो जाता है। एंड दस अपना यहाँ पे जो पेपर नंबर 4 का सेक्शन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सेक्शन ए एंड बी और पेपर नंबर 5। फिर सभी का सीडी बाकी है, लेटर ऑन धीरे धीरे देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।